Yes. Okay. Sairam children, let us begin today's class. Okay. By chanting Omkaram 3 times. So join your hands. Yes. Sairam. So I hope you are ready for the class. Yes, ma'am. Yes, ma'am, we are ready. Yes, Yes, ma'am. ma'am, we are ready. Yes, ma'am. Okay. Is Sabrina there? Sabrina, are you there? Then please respond. Yes, ma'am. Yes, switch on your video. Please switch on your video. Can we talk? I still cannot see you. Have you switched on your video? I cannot see you. Sabrina. And you are not going to leave the meeting when I talk to you. This I have told your class teacher ma'am also. जब सबरीना से कोई क्वेश्चन पूछो तो वो मीटिंग छोड़ के भाग जाती है. ऐसा नहीं करना आपको. ओके. एंड आर यू देयर? देन प्लीज रेस्पॉन्ड. आपका वीडियो भी ऑन नहीं है, माइक भी ऑन नहीं है. आर यू देयर? आप कैमरे के सामने हो? आर यू देयर? नो रिस्पॉन्स. सबरीना, आर यू देयर? देन प्लीज रेस्पॉन्ड. माइक ऑन करके यस मैम तो बोल सकते हो एटलीस्ट. या भाग गए नाम सुन के? ओके. I had to tell you something that is I wanted to ask. आपने पेपर खुद से दिया है कि किसी की हेल्प लेके दिया है? ओके. बिकॉज आई वॉज हैविंग सम डाउट. मुझे एक क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा था आपने जो लिखा. दैट्स व्हाई आई वांटेड टू आस्क यू. Anyways, she is not responding. It seems she ran away. So let us begin with our class. Are you ready? Yes, ma'am. Yes, ma'am, we are ready. Okay, fine. Yes, ma'am. Yes, Then ma'am. we will share the screen. Let me see if I can share. If I'm having problem, then I will tell you. Then you are to switch off your video for 1 minute. Just wait. Let me see. Yes, I think it is taking some time. So please switch off your videos. Let us see for 1 minute. Screen share हो जाए उसके बाद आप on कर लेना. Yes, switch off your videos.
Yes, ma'am. 1 मिनट रुक जाओ. Yes, हो गया screen share. Now you can switch on one by one. Now can you see the book page? Has it come? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. I can see. Yes, ma'am. Okay, Yes, fine. Fine. Then I think we can begin. I think we can begin. Yes, fine. Now we have done the lesson, The Little Bully, and we have discussed. And let us discuss the question answers today. Then what we will see? Then we will look at the grammar portion. Maybe grammar portion can't be covered today. So tomorrow we will take up, in the next class we will take up. And today let us see the book question answers. So we will start. Now we have to hear is multiple choice questions are there. First we will do these, and if I feel, then I can give you a list of question answers which you will get in your WhatsApp group, and I think you have to write on your own, because in your first part I helped you with the answers. Okay, I heard that Suma ma'am used to give you to answer on your own, right? And you used to answer on your own and show her, right? Yes. But I gave you, for some lessons, for some units, I gave you the lessons, I gave you the question answers and helped you. And you can always improvise on that, and you can write extra on top of that. But that was just for one help. But from now onwards, I am going to ask you to write the answers, and you are going to write yourself. Let me see how you can write. If you cannot write well, then I will always help you. Of course, I will help you. And if I feel that on top of your answers, some points are missing, then I will always help you and I will give you the answers. But first, let me see how you can answer. So maybe I will give some questions, and you have to provide me with the answers. You have to show me the answers. So I will give the question list on your WhatsApp, and you are going to answer. But for now, for this class, I am going to do the multiple choice, that is multiple choice questions. Those are at the end of your lesson in the textbook. So I hope you have your textbook in front of you. Then you can see from there also. Those who are not having textbook, जिसके पास textbook अभी नहीं है, वो स्क्रीन पर भी देख के बता सकते हो. स्क्रीन पर भी मैं आपके बुक का पेज ही शेयर कर रही हूँ. Okay. Now first one. Why did all the children hate Hari? Options are, यानी सब बच्चे हरी को पसंद क्यों नहीं करते थे? First option, because he would not talk to anyone. वो किसी से बात नहीं करता था इसलिए. Second option, because he always pinched them. यानी वो all the time करता था. या third one, because he loves stealing their food. Second one. खाने Second one. Because he always pinched them. Yes, because he always pinched them. Second one. He was a champion pincher. So we have to tick mark this. Next one, nobody took Hari's hand. Nobody went near him. Nobody played with him. This shows that Hari had many friends. Option one. No New- friends. few friends. Third Yeah, one. third No one. friends. No friends. No friends. No friends. Ma'am, Yes, no friends. no friends. Ma'am, no No friends. friends. No friends. Okay? No friend. Ma'am, no friends. Yes, we have marked that. No friends. Because nobody came near him. When he went to the picnic also, he sat down to eat alone and nobody came near him. क्योंकि सब डरते थे उससे, या तो उसको नापसंद करते थे, बिकॉज वो हमेशा उनको पिंच करता था और हर्ट करता था.
इसलिए nobody became his friend. Okay, and the third one, just a minute. Yes, the third one. Which of the following actions would make a friendly person? Write them down. तो इनमें से कौन सा एक्शन करने से एक अच्छा फ्रेंड बन सकते हो आप? Option 1. Respecting other people. Let us see. Ma'am, option 1, respecting other people. Children, there can be more than one. There can be more than one. So which one I will take yes or no as the answer? Suno. We will take each point individually. Then you will tell me yes or no, because there can be more than one point here also. Okay. Respecting other people. Yes होना चाहिए. Yes. Yes. So we will Yes, mark ma'am. this. Yes. Second one, eating small child's tiffin. No, ma'am. No. खाना खा जाना चाहिए. No. Then we will become a bully. No, ma'am. Then next one, calling people rude names. सबके No. अलग-अलग No, rude name लाना. No, ma'am. No, ma'am. No, that is no. Then the next one, pushing smaller boy and making him cry. इतना पुश No. करना छोटे बच्चों को No, वो ma'am. गिर जाए. No, ma'am. और वो no. Being helpful to everyone. सबको help Yes, करनी ma'am. चाहिए, मदद करनी चाहिए. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So we will mark this. Yes, ma'am. Helping your classmates in school. आपके Yes, क्लास ma'am. के बच्चों Yes, को ma'am. Yes, ma'am. yes help करना चाहिए. Then Yes, ma'am. looking at friends and hurting their feelings. यानी No, मजाक ma'am. उड़ाना चाहिए. No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. And the last one, protecting a weaker person. जो कमजोर Yes, है ma'am. उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, बचाना चाहिए. Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. So all these things, 4 qualities I think we have marked here. So these 4 things, respecting other people, number 1. Number 2, being helpful to everyone. Number 3, helping your classmates in school. And number 4, protecting a weaker person. If you follow all this, then you will become a good friend. Now you are going to write this on your own and show me. Actions which would make a friendly person. यानी वो actions जो आपको एक अच्छा friend बना सकते हैं. You can take from here, or if you want, you can add some out point also. और ये क्या है? ये vocabulary है. अच्छा, vocabulary का मतलब कोई मुझे बताओ. Tell me someone meaning of vocabulary. Vocabulary means किसी भी लैंग्वेज को बार बार बोलना, उससे वर्ड सीखना. Being good English, saying good English. Okay. I will tell you one simplest one. Simplest meaning मैं बताऊं? The body of words used in particular language. हाँ, you can say. लेकिन सबसे easy definition क्या है पता है? Vocabulary का आपके words जो है, words के numbers बढ़ाना. Suppose आपको 100 words आते हैं, इसको 150 तक ले जाना. आपको 150 आते हैं तो 200 तक लेके जाना. Not just only 50-50, लेकिन कुछ भी words के जो numbers बढ़ाते हैं, यानी आपको सीधी तरह से अगर कहा जाए तो आपके जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज के ऊपर कमांड बढ़ाते हैं, यानी लैंग्वेज अच्छे से आपको सिखाता है. दैट इज नथिंग बट vocabulary. अगर आपको वर्ड्स की नॉलेज बढ़े
तो अल्टीमेटली क्या होगा, आप लैंग्वेज को अच्छे से सीखोगे, है ना? यस। तो लैंग्वेज को अच्छे से सीखना कब हो सकता है, जब आपको ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स आए और वर्ड्स को आप ठीक से सेंटेंस में यूज कर सको। Yes, ओके, ma'am. वर्ड्स को आप सेंटेंस में यूज जब तक नहीं करोगे, वोकेबुलरी का पूरा फंक्शन कंप्लीट नहीं होगा। इसीलिए मेक सेंटेंसेस Yes, बहुत ma'am. जरूरी है। मेक सेंटेंसेस बहुत जरूरी क्यों है? क्योंकि एक नया सा वर्ड हमको मिला, उसको कैसे सेंटेंस में अप्लाई करना है, कैसे यूज करना है, वो इम्पोर्टेंट है। जैसे कि एक स्किल आपके पास है, एक पत्थर का टुकड़ा आपके पास है, वो आपके किस काम का? जब तक आप उससे कोई काम ना करा लो, जब तक उससे एक पत्थर के टुकड़े से आप बिल्डिंग बना सकते हो, फ्लोरिंग बना सकते हो, या तो उसको घिस के आप आग जला सकते हो। दिस इज कॉल्ड अप्लाइंग द थिंग्स, रिसोर्सेस। जो आपके हाथ में जो चीज है उसका उपयोग करना, उसको कहते हैं अप्लाइंग द रिसोर्सेस। ये जब तक आप वर्ड्स है आपके पास, वर्ड्स तो वैसे ही पड़े हैं, जब आप उसका मीनिंग नहीं समझोगे और उसको सेंटेंस में अप्लाई नहीं करोगे, जो आपके बोलचाल में, जो आपके कन्वर्सेशन में उसको यूज नहीं करोगे, तो उसका कोई फायदा नहीं। आपने पढ़ तो लिया इतने सारे वर्ड मीनिंग्स, लेकिन आप बात जब करते हो तो वैसे ही छोटे बच्चों के लैंग्वेज में, जैसे केजी में, एलकेजी में, यूकेजी में हम बात करते थे ना, टूटी फूटी इंग्लिश में, वैसे ही बात कर रहे हो, तो कोई फायदा नहीं वर्ड मीनिंग्स पढ़ने का। कब फायदा आएगा? जो आप नए नए वर्ड सीख रहे हो उसका मीनिंग आपको याद रखना है। देखो बच्चों, आप लोग ऐसे स्टेज पे हो लाइफ के कि आपका मेमोरी अभी शार्पेस्ट दौर से चल रहा है। इसके बाद से जो होगा ना, उसके बाद से घटेगा, कम होगा आपकी मेमोरी। अभी जो है इंक्रीजिंग लेवल पे है और पीक पीक तक पहुंच सकता है। तो इसको हमें क्या है, शार्पन करनी पड़ेगी अपनी मेमोरी। शार्पन कैसे करोगे? यूज कर करके। अगर हम बैठ गए टीवी के सामने, 10 तक खत्म हो जाता है क्लास, उसके बाद हम टीवी के सामने बैठ गए, हो गया खत्म, दैट इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड। नहीं चलेगा। तो आपको क्या करना है, ये सब जो क्लासेस हो रहे हैं उसको लेके कल्चर करो, उसको लेके सोचो, उसके आंसर्स खुद निकालो। अगर जरूरत पड़े तो आप डिक्शनरी देखो, गूगल भी है, या तो रिटन डिक्शनरी भी है आपके पास, वो वर्ड मीनिंग्स देखो, ढूंढो। मैम ने भी दिया है, उसको भी देखो, रिवाइज करो। हार्दिक क्या बोले जा रहे हो, लिसन टू मी। ओके, तो ये सब करना है, तो क्या होगा, अपनी मेमोरी जो है वो शार्पन होगी। हार्दिक कैमरा ऑफ नहीं करने बोला मैंने। यस। तो आपकी मेमोरी को शार्पन करो, वर्ड मीनिंग्स जो नए नए सीख रहे हो उसको अप्लाई करो अपने बोलचाल में, कन्वर्सेशन में। तो ही ऐसे ही धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप्स लेके हमारी इंग्लिश इम्प्रूव होगी। नहीं तो आप ऐसे ही एलकेजी यूकेजी वाले इंग्लिश बोलते रहोगे पूरे लाइफ, और जब बड़े किसी से बात करनी होगी तो वो सोचेगा, कुछ नहीं कहेगा लेकिन सोचेगा मन में कि कैसा इंग्लिश बोल रहा है, बच्चों जैसे। आपको वैसा चाहिए? डू यू वांट टू बी लाइक दैट? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. नो। No, ma'am. No, हाँ, ma'am. वैसे मत बनना। No, ma'am. तो No, क्या ma'am. करना है, आप जो नए नए वर्ड सीख रहे हो, भले वो हो सकता है कि शुरू शुरू में आपको अजीब लगे, शुरू शुरू में आपको लगे कि हाँ मैं ठीक से नहीं अप्लाई कर रही हूँ, कोई बात नहीं। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप प्रैक्टिस करने से ही परफेक्ट होंगे। कोई भी, आपके मैम भी नहीं और कोई भी नहीं दुनिया का जो एक दिन में परफेक्ट बना। हम लोग मिस्टेक्स कर करके ही सुधरे हैं और यहाँ तक आए हैं। ओके, तो आपको भी कोशिश करनी चाहिए, भले वो मिस्टेक हो लेकिन फिर भी आपको कोशिश करनी चाहिए। यू मस्ट ट्राई। मैम अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला था कि if you don't make mistakes, you can't learn anything new. यस, बट दैट डजंट मीन कि कॉन्शियसली मिस्टेक करते जाओ। अगर आपको सही आता है फिर भी मिस्टेक करो, ओके? वैसा नहीं है,
लेकिन अगर मिस्टेक प्रोसेस में हो भी जाता है कोई बात नहीं, लेकिन हमें कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए. दैट इज द एसेंस ऑफ द. Ma'am, after class, I do revision. वेरी गुड. दैट शुड बी डन बाय ऑल. सबको ऐसे ही करने चाहिए. Yes, ma'am. After the class and revision. पता है क्यों करना चाहिए? क्योंकि आफ्टर द क्लास आपकी मेमोरी बहुत शार्प रहती है. अभी अभी आपने जो किया है वो आपकी मेमोरी में फ्रेश रहता है, आप उसको ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे. वो सेम चीज को अगर आप रख दो, इवनिंग में करो तो नहीं होगा. पता है, तब तक आपकी मेमोरी कुछ परसेंट घट चुकी होती है. इट इज अ रिसर्च दैट सेज, रिसर्च कहते हैं कि जो हम लोग पढ़ते हैं पूरे दिन में, सुनते हैं पढ़ाई या नई चीजें, उसका आखिर तक हम जब सोने जाते हैं उसका 20% रिटेन होता है, 80% वैसे ही लॉस हो जाता है. ओके तो इसको 20% से 2% नहीं होने देना है. तो हमें फ्रेश मेमोरी में रहते ही उसको रिवाइज कर लेना चाहिए. और मैंने जैसे कि कहा था पिछले मीटिंग में भी कि थोड़े थोड़े पॉइंट्स मैं अभी आपको सिखाने वाली हूँ, बोल रही हूँ. Yes, पॉइंट ma'am. इतना सीखो, क्योंकि आप बड़े हो रहे हो, बड़े क्लासेस में भी ऐसा करना है. एक नोटबुक फेयर नहीं भी चलेगा तो रफ भी चलेगा. थोड़े थोड़े पॉइंट्स, लेकिन ऐसे पेपर नहीं, ऐसे चिट्स नहीं जो कल खो जाए, आज लिखो कल खो जाए, ऐसे नहीं. एक कॉन्क्रीट सा कॉपी चाहिए जिसपे आप आज डेट वाइज डेट डालोगे, सब्जेक्ट डालोगे. सिर्फ मेरे सब्जेक्ट के लिए नहीं, सारे सब्जेक्ट्स के लिए ऐसे कर सकते हो. हम लोग करते थे, हम जब छोटे थे, स्टूडेंट्स थे. ओके तो ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स लिखते जाना है. सपोज मैम ने कुछ चीजें बार बार कहे, रिपीट से मैम ने कहे हैं कि मैम ने बोल दिया है कि इम्पोर्टेंट है, छोटा सा पॉइंट बना लेना है. पूरा सेंटेंस नहीं रिपीट करना है, पूरा सेंटेंस लिखने की कोशिश नहीं करना. कोई नहीं लिख सकता दुनिया में, सिर्फ आप नहीं, लेकिन एक छोटा सा पॉइंट निकल के आ सकता है. जैसे कि मैम ने क्या कहा अभी, वोकैबुलरी का डेफिनेशन. तो हम क्या पॉइंट बनाएंगे, वोकैबुलरी डैश मीनिंग छोड़ दो अभी के लिए. बाद में ये जो रिवीजन वाला पार्ट है जो आप करोगे, तब आप उसको डिटेल में देख लेना, मीनिंग ढूंढ लेना कहीं से, या मीनिंग को याद कर लेना तब. लेकिन आप पॉइंट फॉर्म में वोकैबुलरी डैश मीनिंग. फिर मैम ने क्या कहा, फॉर एग्जाम्पल बीइंग अ गुड फ्रेंड, पॉइंट्स डैश ऐसे लिख लेना. बाद में जाके उसको इलेबोरेटली डिटेल में देखना, लेकिन अभी के लिए पॉइंट बना लो. इसको कहते हैं पॉइंट्स बनाना. आई बात समझ में आ रही है ना? समझ में कैसे पॉइंट्स बनाते हैं? शॉर्ट, जितना Yes, Yes, शॉर्ट हो ma'am. सके. Yes, ma'am. हाँ, जितना शॉर्ट हो सके, लेकिन इतना भी शॉर्ट नहीं कि बाद में आपको समझ ही नहीं आए क्या है उसके बारे में, क्या लिखना है, क्या बोली थी मैम, वो तो समझ आना चाहिए ना. जैसे कि वोकैबुलरी सिर्फ आपने लिख दिया तो बाद में पता नहीं चलेगा, लेकिन आपने वोकैबुलरी डैश मीनिंग लिख लिया तो ये स्पेसिफाई हो गया कि वोकैबुलरी के बारे में क्या है, उसका मीनिंग कहा था. समझ में आ रही है? ऐसे ऐसा जरूरी नहीं कि मैम का वर्ड टू वर्ड आप लिखो, लेकिन आपको जो मीनिंग समझ में आ रही है टू द पॉइंट, वही पर शॉर्टेस्ट वे में आप लिख लो. क्यों शॉर्टेस्ट? क्योंकि टाइम बचेगा, आप ज्यादा मैम की बात सुनने में टाइम डिवोट कर सकते हो. अगर आप लिखने में बैठ गए एक पूरा सेंटेंस सुंदर सा, बस हो गया, आप एक ही सेंटेंस में अटके रहे, मैम ने 4 सेंटेंस और बोल दिए, वो आपने मिस कर गए. तो ये स्विचिंग ऑन आपको सीखनी पड़ेगी बहुत जल्द. मैम, हम होमवर्क भी ऐसे शॉर्ट में लिख सकते हैं. नहीं, बिल्कुल नहीं. तो फिर आपको मार्क्स भी मैं शॉर्ट में ही दे दूंगी. ओके, एग्जाम में भी ऐसे लिखो, मैं मार्क्स भी शॉर्ट में दे दूंगी. हाँ, मेरे लिए आसान होगा शॉर्ट मार्क्स. ये सिर्फ रिवीजन के लिए मैं बोल रही हूँ, ये सिर्फ क्लास के लिए मैं बोल रही हूँ. जब इसको पढ़ोगे तो ये एक पॉइंट का एक सेंटेंस या 2 सेंटेंस बन जाएगा. ओके, जो आपने नोट कॉपी में लिखा है उसी को प्रोड्यूस मत कर दो एग्जाम पेपर में, तो फिर मैं मार्क्स भी वैसे ही दूंगी. 20 में से 2, 20 में से 1 चलेगा आपको?
नो मैम। हाँ, No, ma'am. No, ma'am. तो ऐसे नहीं No, उसको ma'am. इलेबोरेट कर देना है बाद में। यस, तो ये मैं आपको एडवाइस दे रही हूँ, ये सभी सब्जेक्ट्स के लिए करके देख सकते हो। हम जब ऐसे करते थे ना, तो बाद में बहुत हमको क्या है सुविधा होती थी, बहुत आसान रहता था बाद में जब हम रिवीजन करते थे। हमें भी अपने टीचर्स से मिली थी, हम ऐसे करते थे तो बहुत आसान हो जाता था हमारी स्टडीज। ये आपको किसी दूसरे मैम ने या सर ने बताया है क्या? No, ma'am. No, ma'am. नो मैम। नहीं बताया। No, कोई बात ma'am. नहीं, आप ऐसा करके देख सकते हो। ओके, कोई बात नहीं, आप ऐसा करके देख सकते हो दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए भी। और आप ज्यादा नहीं, आप 1 मंथ में देख लो कितना प्रोग्रेस होता है आपका, कितना आपके दिमाग में ज्यादा रहता है। डेफिनेटली यू आर गोइंग टू सी द रिजल्ट्स, डेफिनेटली। ओके, क्योंकि ह्यूमन मेमोरी का एक क्या होता है, लिमिटेशन होता है। अभी अभी तो आपके इस क्लास में बड़ा मतलब फ्रेश है जो चीज आपने सुनी। 1 महीने रहेगा क्या मेमोरी? 1 महीने बाद इतना इतना सा याद रहेगा क्या? आज की क्लास में क्या हुआ, आज के डेट में याद रहेगा? 1 महीने पहले की बात सोचो, आपको याद है इतने क्लियर से किस दिन मैम ने कौन सा पढ़ाया था, कौन से पॉइंट्स कहे थे, याद है क्या? नहीं ना? No, ma'am. ये किसी का नहीं रहता है, नो सिर्फ आप। मैम। दिस इज द लिमिटेशन ऑफ ह्यूमन मेमोरी, लिमिटेशन है। ओके, यस, हमें याद नहीं रहता है। लेकिन जब हमने पॉइंट बना लिया, डेट डाल के, सब्जेक्ट डाल के कि ऐसा डेट है, ऐसा पॉइंट बताया था मैंने, मैम ने, ये सब्जेक्ट के अंडर में, अगर उस पॉइंट को आप देखोगे ना, इंस्टेंटली आपके माइंड में कुछ ना कुछ तो आएगा ही उस पॉइंट के बारे में। तो आपको तब पता चलेगा, तब आपको याद में आएगा, हाँ मैम ने कुछ ऐसा ऐसा बोला तो था। ओके, इसी चीज को आपको हेल्प करेगी। देखना, ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स है ना, ये आपको बड़ी बड़ी हेल्प करने वाले हैं बाद में। दिस कैन बी अ लाइफ सेवर। तो इसको हर एक सब्जेक्ट में ऐसा करना सीखो, क्योंकि आप 5th में आ गए हो, अभी पेन से लिखना चालू कर दिया, तो दैट मीन्स यू आर ग्रोइंग अप। ओके, पेंसिल से छोड़ के हमने पेन अपना लिया, तो हम बड़े हो रहे हैं। तो आपको बड़ों जैसी आदत भी डालनी पड़ेगी पढ़ाई के बारे में भी, इजंट इट? हमको मैच्योर बननी पड़ेगी हाई स्कूल के लिए। हम जा रहे हैं यस मिडिल मैम। हाई स्कूल, तो हमें उस तरह से अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए। वी शुड अपग्रेड आवरसेल्व्स लाइक दैट। ओके, ऑल द बेस्ट, लेट अस सी द नेक्स्ट। आपको टाइम वेस्ट तो नहीं लग रहा है मैम की बात? No, ma'am. No, ma'am. नो मैम। No, ma'am. ओके, मैं आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ जो कि आपको ऑल सब्जेक्ट्स में हेल्प करने वाले हैं। No, ma'am. No, ma'am. These are going to help you in all the subjects in future. देख लेना, तब आप मैम की बात याद करोगे। हाँ, मैम का एडवाइस सही था। No, ma'am. No, ma'am. Advices are very helpful to us. ओके, थैंक यू। आप उसको फॉलो करो और प्रोग्रेस करो और अच्छा करो, यही हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। ओके, लेट अस टेक अप द नेक्स्ट। तो वोकैबुलरी से हम कहाँ कहाँ चले गए? Now let us see. Find out words which are opposites or are closest to being opposites to the given words. Write them down, the opposites in the grid. तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, हमें ऑपोजिट्स बताने हैं ये वाले वर्ड्स के, ऑपोजिट से Yes, फिलअप ma'am. करने हैं, नॉट दीज वर्ड्स एग्जैक्टली, इसके ऑपोजिट्स। Yes, ma'am. तो डाउन, डाउन मतलब ma'am. क्या होता है? ऐसे, डाउन, अप डाउन। और अक्रॉस मतलब क्या होता है? ऐसे ऐसे, अक्रॉस। ओके, हॉरिजॉन्टल इज अक्रॉस एंड वर्टिकल इज डाउन। ओके, लेट अस सी फर्स्ट वन। डाउन में स्माइल, तो यहाँ पे क्या होगा? स्कूल। स्कूल।
CW आ जाएगा मैम। अच्छा, C और W आएगा, तो वो स्काउल होगा बेटा, स्कोल नहीं। ओके, स्काउल। यस, लेट अस सी, लेट अस राइट। SCOWL. SCOW. सॉरी, सॉरी फॉर द हैंड राइटिंग, मैं वो कंप्यूटर से लिख रही हूँ, ये कभी कभी हैंग हो रहा है। ओके, नेक्स्ट इज हैप्पी। 2 का हैप्पी, इसमें क्या क्या होगा? मिजरेबल। Miserable. अच्छा, लेट अस सी। All the words. स्पेलिंग बताओ, मेजरेबल का स्पेलिंग बताओ। SEIABLE। Miserable. R A BLE। ओके, मिजरेबल, ठीक है। Miserable. नेक्स्ट इज फोर्थ वन डाउन, ये स्ट्रॉन्ग। Noisy. Weak। ये तो Ma'am, noisy, Ma'am, noisy. Ma'am, weak. वीक। Weak. हाँ, हो गया। अभी अक्रॉस वाला चाहिए। 3 का अक्रॉस क्वाइट, यहाँ पे क्या होगा? Noisy। Noisy। NOISY, नॉइजी। और फिफ्थ का पनिश, Reward। बेटा ये रिवार्ड तो है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन रिवार्ड नहीं है। Reward। यस, करेक्ट। Ma'am, reward. अच्छा बच्चों, आपका वार्ड नंबर कौन सा है पता है आपको? वार्ड, Yes, ma'am. तो वार्ड नंबर WARD वार्ड होता है ना, वार्ड होता है क्या? वार्ड नंबर कोई पूछता है? वार्ड होता है, No, ma'am. वार्ड होता है। Reward. ओके, तो इसीलिए ये वर्ड भी REWARD रिवॉर्ड होता है। ये क्या हो रहा है सिद्धिका आपके बीच में? आई एम गोइंग टू पुट यू that means you are not concentrating on what ma'am is saying. सेकंड और 2 का राइटिंग समझ नहीं आई। हाँ श्रेया, क्या बोला आपने? आपने जो सेकंड का लिखा था और थर्ड का लिखा था वो समझ नहीं आया था। सेकंड और थर्ड का एक, सेकंड का क्या था? हैप्पी, Miserable and noisy. Miserable। And noisy. RABLE, मिजरेबल का मतलब मैम वो जो wretched, miserable है। एस के बाद हाँ? एस के बाद हाँ ई है, सॉरी वो हैंडराइटिंग थोड़ा बिगड़ गया। और एम के बाद आई, यस मैम। मिजरेबल। और ये लास्ट से थर्ड का REWARD रिवॉर्ड, और इसका नॉइजी। नॉइजी मैम डब्ल्यू है वो NOISY, नॉइजी। यस मैम। Okay. Let us see the next one. Hari was pinched till he was black and blue. Black and blue means number one. There Hari was fell down on there the was bursue on his body. but still let's see the
बच्चों लेट मी से द ऑप्शंस, फिर आप बोलो. Harry fell down in pain. Number 1. Number 2, there were bruises on his body. Number 3, Harry painted himself in colors. Interesting. Blue or black color. Fourth one, Harry had a black and blue shirt. There were bruises There was burshi on his body. I had on his body. bruises. On his There were bruises on his body. हमने पूरा पढ़ लिया, लेसन को पढ़ लिया. उसके बाद बुर्सेस, किसने कहा बुर्सेस? हाँ, उसको पनिशमेंट मिलेगा अभी. बुर्सेस को ब्रूजेस. ब्रूजेस कौन, ये bruises वाला कौन है? बताओ मुझे. There were ऑनेस्टली bruises on his body. ऑनेस्टली बताओ किसने कहा? मैम अजत्री. ओके, ये ब्रूजेस. फिर से बोलो, ब्रूजेस. Bruises. Bruises. ब्रूजेस. ओके. BR जैसे ब्रश होता है, ब्रश होता है BR. यहाँ पर भी ठीक से देखो, यहाँ पे BR है. ओके, BRU. सो BRU ब्रश अगर हो सकता है, BRU ब्रूजेस होगा, ब्रूजेस नहीं होगा, ब्रूजेस. ओके, कोई बात नहीं, मिस्टेक हो गया. आगे आगे से हम ध्यान में रखेंगे. सो यस, देयर वर ब्रूजेस बॉडी, यानी पिंचिंग से वो क्रैब्स या लॉबस्टर्स ने जो पिंच कर दिया बॉडी पर, तो वो ब्रूजेस बन गए. सो ही वाज ब्लैक एंड ब्लू. ब्लैक एंड ब्लू एक प्रोवर्ब भी है. ओके, प्रोवर्ब को हम क्या कहते हैं? बीइंग ब्लैक एंड ब्लू, यानी हर्ट होना किसी सिचुएशन से. जब हम हर्ट हो जाते हैं, सो दिस इज ऑल्सो वन फिगर ऑफ स्पीच. आप बाद में सुनोगे, बाद में पढ़ोगे. सो आई वॉज ब्लैक एंड ब्लू इन द सिचुएशन, यानी आई वॉज हर्ट. ओके, नेक्स्ट. I shan't pinch anyone anymore. Shan't mean shall. Yeah, shall. shall Shall not. not. Shall not. Shall not. Shall not का short form है shan't. Shall not. Okay. लेकिन ये shall ना अभी बहुत कम यूज में है इंग्लिश में. मॉडर्न इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स आ गए हैं, और shall not जैसे वर्ड ना थोड़े थोड़े कम होते जा रहे हैं. कुछ दिन आएगा एक दिन आएगा जब ये shall not यूज होना ही बंद हो जाएगा. यस, पता है shall not, I shall और shall हमेशा याद रखना, shall हमेशा I के बाद आता है और किसी भी प्रोनाउन के बाद नहीं आता है. कभी कभी आ सकता है she shall not, he shall not, लेकिन ज्यादातर सुनाई देता है, 90% ऑफ द टाइम सुनाई देता है I के बाद. I shall not Yes. और I shall. ओके, I के बाद 90% सुनाई देता है, लेकिन I ना, ये shall ना रिप्लेस हो गया अभी will से. पता है, I will not, क्योंकि I shall मतलब कंफर्म. I shall not do it again, यानी मैं कभी नहीं करूंगी या करूंगा, लेकिन अभी ये will से रिप्लेस हो रहा है मॉडर्न इंग्लिश में. इसीलिए shall का यूज बहुत कम हो गया है आजकल मॉडर्न इंग्लिश में. ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो खत्म ही हो गए, जैसे डेड वर्ड्स बन गए, उनको कहते हैं आर्केइक वर्ड्स. मैं कुछ लिखूं चैट बॉक्स में, आपका हो गया हो तो. Yes, ma'am. Yes, ma'am. लिखिए. Yes, ma'am. लिखिए. Yes, ma'am. लिखिए. एक मिनट, मेरा चैट बॉक्स तो अभी गायब ही हो गया आप लोगों के चक्कर में. नहीं, ओके, व्हेन इट कम्स बैक आई विल राइट. इसको कहते हैं आर्केइक वर्ड्स. ARCHAIC. ARCH. हाँ, आ गया. आई एम राइटिंग इन चैट बॉक्स. ARCHAIC.
आर्केइक वर्ड्स, आर्केइक वर्ड्स मतलब डेड वर्ड्स। डेड मतलब जो खत्म हो गए, ओके। यानी ये वर्ड्स अभी यूज में और नहीं है, पुराने टाइम पे था Are लेकिन there any नहीं है। examples of dead words? Like, are there any examples? Yes, many, plenty, thousands. One I will give you just now. अभी फिर से ये हो रहा है मेरा। Ma'am, can you only tell us 5? 5 तो अभी अभी मेरे वर्ड में अभी जहन में नहीं आ रहा है। 1 आ रहा है अभी। ओके, नाउ आई विल राइट। One example is, I'm giving you, like thou. Thou means, किसी को पता है? हमने दाव मार लिया है, वो वाला दाव नहीं है ये। रिपीट कीजिए। ये वो वाला दाव नहीं है, बाजी वाला दाव नहीं है। Down means दाव मीन्स यू। पुराने टाइम पे हम जब आप करके हम संबोधित करते हैं, रिस्पेक्ट देके, जब हम किसी बड़े को संबोधित करते थे, हम यू नहीं कहते थे, पहले हम दाव कहते थे। बहुत से प्रेयर में अगर आप इंग्लिश वाले गाने में सुनोगे, आपको इंग्लिश गाने, जब आपको गाने नहीं, इंग्लिश प्रेयर सॉन्ग जब आप सुनोगे, आप देखना, जब हम जीसस को या गॉड को प्रेजेंट करते हैं, हम दाव कहते हैं। दाउ शल डू दिस, दाउ शल नॉट डू दिस, ऐसे। तो दाव का मतलब, पुराने टाइम पे दाव का मतलब था रिस्पेक्ट करके यू। आजकल हम रिस्पेक्ट देना बंद कर दिए, सब दाव का यू बन गया, ओके। यानी हमने रेस्पेक्ट देना बंद कर दिया सबको, आप कहना बंद कर दिया, सब तू या तुम में चला गया, Yes, ma'am. ओके। ऐसा नहीं है, डोंट थिंक दिस वे, आई एम जस्ट जोकिंग विथ यू, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या होता है, ओवर द टाइम, जैसे हम लोगों की एडवांसमेंट्स होती है, लैंग्वेजेस की भी एडवांसमेंट होती है। ये गलत चीज है कि लैंग्वेज एक डेड सब्जेक्ट है। लैंग्वेज की भी बहुत सारे एवोल्यूशन होते हैं, दिन ब दिन वो निखरती जाती है, लैंग्वेज चेंज होते जाते हैं। तो ऐसे ही मान लो एक चेंज है। ये सारे आर्केइक वर्ड्स और भी है। मैं आपको आज एक होमवर्क देती हूँ। ये जो आपने ये जो करा है, ये जो बुक एंड एक्सरसाइजेस, इसको भी करना है आपको। और मुझे 5 ऐसे दाव छोड़ के 5 आर्केइक वर्ड्स ढूंढ के बताओ मुझे इंग्लिश लैंग्वेज के। मैम which word? मैम, ये बुक पूरा कंप्लीट करना है। एनी Which word? Yes. मैम, 5 आर्केइक वर्ड्स ढूंढ के बताओ। 5 Any five. आर्केइक वर्ड। Yes, any 5. Any 5 मैम, ये बुक का पूरा words. करना है क्या? बुक में पूरा कंप्लीट करना है मैं? क्या, किस चीज को? मैम, बुक का। हाँ, बुक का जो जितना तक हमने किया है, अब तक जितना किया है हमने, उतना कर लो। और आर्केइक वर्ड्स Yes, ma'am. 5 मुझे ढूंढ के बताना है। ओके। दाव को छोड़ के। हाँ, दाव को छोड़ के, ऑब्वियसली, नहीं तो 4 हो गए ना अपने हिस्से में। Ma'am written. ओके Ma'am actually ओके, because of the network it's crap. Yeah. आप कहीं भी ढूंढ लो। आपके हाथ में अभी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज है, आप ढूंढो, बुक में देखो, डिक्शनरी में देखो, कहीं पर भी ढूंढो। इसी को तो रिसर्च कहते हैं। मैं करके दूं, आपका रिसर्च कहाँ हुआ? ये मैम का रिसर्च हो गया। तो मैं चाहती हूँ आप करो, ओके। आई लाइक द स्पिरिट। एंड इसी के साथ आज का खत्म करते हैं, कल हम बाकी का हिस्सा देखेंगे। Ma'am, Okay. Nishant has just copied mine and he's just pasting it. हाँ,
Well, Nishant has copied mine and he's pasting it with the words I have wrote in the chat box. Why you are writing there then? You should write on a piece of paper, send a PDF in the group. तो आपके नाम से आएगा आपने कौन कौन से लिखे हैं. अभी क्यों लिख रहे हो? मैम इन ग्रुप ओनली मैम आपके पर्सनल पे भेजना है. सेंड. हाँ पर्सनल पे भेजना है. अच्छा एडमिन्स का है. ओके आपके मैम से मैं बात करती हूँ. अगर खुल जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप पर्सनल पे भेजो मुझे. ओके ओके आई विल लेट यू नो. आज का क्लास एंड करते हैं. डिड यू लाइक टुडेज क्लास? Yes, Ma'am, yes, ma'am. ma'am. We are like Yes, class. Yes, ma'am. Yes, very much. Okay, let us end the class again by chanting Shanti Path. ओमकार. Okay. Om Shanti Shanti Shanti. Sai Ram children. Sairam. Sairam ma'am. Sairam, ma'am. Sarah ma'am, and thank you ma'am. Sairam, ma'am. Thank you, ma'am.